Dear friends and family, Deviyon or Sajjano, I thank you all for coming today and encouraging and supporting Satyan for his creative efforts and endeavors. Before we start the program, I take this opportunity to thank everybody who is participating and who happily volunteered to take part in this program. And they're going to be reading or singing Satyan's poems. And they have selected their poems. So this week has been a maniac of Satyan's poems. Everybody is reading and distributing the poems. Behind the scene helpers are Sahil Bansala's son, raise your hand. Shruti Bansal. Amir from Bangkok. Sarita. Where is she? Okay. Neelam. She's also behind the scenes. Joanne Nina Kohli. And Sudha. And Ila Prakash. Where is she? She's volunteered to be our MC for the evening. So we have a lovely MC. We also wanted to welcome our out-of-town guests, Dr. Ashok and Rajni Sharma. They have come from Chicago. And Dr. Dinesh and Usha Gia. They have come from LA. Our daughter Rashmi Bansal, raise her hand. Go on. They have come from LA. Rashmi can come here. बबली हमें नजर नहीं आ रहा है सामने. Come here, both of you. Why you two? ये सीमा का है ऐसे आ जाए वो बच्चों को. This time, and we also want to Mr. Joe Kohli is going to be recording the event, so when the poetry session is on, it will be nice if you all can be quiet at that time. This time, Satyan's book is totally opposite from his previous book, Technology Scorecards. He also has an offer from John Wiley for his next book on optimization. His second Hindi poetry book is also ready typewritten and ready, but it's ready for publication. His poetry writing was a breeze, as they came as an inspiration, and he wrote it down in one flow. Whether in the car or you just say, inspiration is coming, why don't you write down? So, in the car we'll be writing down something, or in the hotel, in the middle of the night. But I must say, he never disturbed me. He would quietly slip from the bedroom or go to the office or in the bathroom, put on the light and write over there. Publishing the book in India was a nightmare. His first publisher would not return his calls. And that guy was an ex-editor of a newspaper. And he was unprofessional. He did not deliver the book on time. He made a shoddy cover, just put a flower on the top. And did not do an efficient layout. And did not give us a soft copy of the poems when we broke the contract. So we had to... And Satyan fired him. We had to retype the poems in Hindi. I hired a graphic artist who did the layout. And the cover picture was designed by Satyan, and the artist just put it on the cover. The background was pictures from our holidays and vacations. Satyan selected all the pictures of the poem, each and every picture from various sources. He designed all the pages, wrote all the titles, and took his own photograph for the back cover from his iPad. This book has been a passionate labor of love. And for those who have not received the book personally from Satyan, please be free to take a copy. And with much ado, I present my husband, Satyan Bansal. तो एक चीज़ तो खास और वो ये है कि आप लोगों में से जिनको भी मैंने किताब नहीं दी है, साहिल तेरा ऊंचा कर यार. It's fine. It's fine. Okay, ready? Yeah. It's pretty good. तो फिर क्या करेंगे? You can hear? All right.
ओके, सो आप जिन जिन लोगों ने भी जिन को भी मैंने बुक नहीं दी है, प्लीज़ आप ले लें, और अगर ख़त्म हो गई हो तो मुझे बता दें ताकि मैं आपको मंगवा के जयपुर से दे दूँगा। तो जहाँ से स्नेह ने ख़त्म किया है उसके आगे मैं चलूँ तो कुछ बैकग्राउंड आपको देना चाहता हूँ जिन लोगों को मालूम नहीं है कि मुझे बचपन से ही कविताओं का और लैंग्वेजेस का बहुत शौक़ था, लेकिन बनना मैं इंजीनियर चाहता था, इसलिए मैंने उस शौक़ को दबा के बोतल में बंद करके पीछे डाल दिया। तो जब ये मैं इंजीनियर हो गया, काफ़ी तरक्की हो गई, मन लायक जो मैं चाहता था हो गया, तो फिर मैंने चीनी को बोतल से निकाल दिया। अब जब कविताएं दिमाग में आने लगी इंस्पिरेशन के साथ, तो फिर मैंने जैसा स्नेह कह रही थी लिखना चालू किया। होते होते मेरी फाइल जो है एक बड़ी सारी मोटी फाइल हो गई। तो उसको अब मुझे डर लगा कि अगर ये खो गई तो मैं किंको में गया, छोटे मोटे कागज़ को एक साइज़ के अंदर कट पेस्ट करके बनाया, और तो वो फोल्डर में जो है इस साइज़ का फोल्डर हो गया। कापी की हिंदुस्तान गया तो उसको टाइप करवाया, प्रूफ किया, री-एडिट की, एडिट की। अंत में राजस्थान यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े विद्वान कवि और हिंदी के प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर सोनी, जिनने प्रीफेस लिखी है प्रस्तावना यानी कि, उनको दी और उनको बहुत पसंद आई। उनके जो और भी साहित्यिक रचनात्मक प्रोफेसर्स थे उनको भी बहुत मज़ा आया। तो इस पोइट्री बुक के ऊपर, चूँकि ख़ास तौर से ये बुक छायावाद को रिप्रेजेंट करती है, छायावाद के पीएचडी स्टूडेंट्स ने इस पे पीएचडी का काम चालू कर दिया पिछले साल से। तो खैर उनने अपना काम किया और फिर अंत में ये बुक बन गई। इस किताब में कुछ कविताएं तो उस ज़माने की है जब मैंने लिखना कभी कभी लिखता था चालू किया। फिर जब माँ सरस्वती की कृपा हुई तो इंस्पिरेशन जाग गई, म्यूज़ जाग गई। तो इंस्पिरेशन जब आती थी ड्रीम्स में तो जैसा स्नेह ने कहा मैं लिख लेता था, और लिखते लिखते पूरी की पूरी कविता एक ही फ्लो में हो जाता था बिना काट छांट के। नेक्स्ट स्टेज में मेरी इंस्पिरेशन यानी कि सपनों की नायिका मुझसे मिलना चाहने लगी थी, लेकिन मैं संसार के कालजाल में और मेरी नायिका कॉन्शियसनेस के कालजाल की फंसी कल्पना मात्र थी। तो कैसे मिलते, इसी जड़ से चालू होकर और कई कविताओं को लिखा है। इनमें से कुछ मैं आपको सुनाऊंगा, ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा बिकॉज, और दूसरी कविताएं जो मेरे दोस्त लोग रिसाइट करेंगे, कुछ लोग उनमें से गाएंगे भी, तो मैं उनको उनके लिए छोड़ दूंगा। अब थोड़ा गूढ़ रूप में यानी कि थोड़ा डिटेल में फंडामेंटल्स में देखूं अपनी कविताओं को, उनका रिव्यू करता हूं, तो लगता है कि मैंने खूबसूरती, खुशी, प्यार, मिलना, बिछुड़ना और यादों जैसे ग्रेट ह्यूमन इमोशंस के बारे में ही ये कविताएं लिखी हैं। दूसरे मानों में ये छायावाद की कविताएं हैं जो उस युग के गुजर जाने के 60 साल बाद, 60 ईयर्स के बाद में अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी पहली बार लिखी गई हैं। इसके बारे में सुधीर सोनी ने, जैसा मैंने कहा, भूमिका में काफ़ी कुछ लिखा है। छायावाद के महाशायर लोग, कवि लोग, जिनको मैं कहना चाहूँगा थे पाकिस्तान के इकबाल, हिंदुस्तान के दिनकर जिनने उर्वशी लिखी, और बच्चन, साकी वाले। गौर से आप इनकी रचनाओं की आत्माएं देखें तो आपको मिलेगी इकबाल में मुंतज़र हकीकत यानी कि सबकॉन्शियस रियलिटी, दिनकर की उर्वशी और बच्चन की साकी, और उसी तरह है मेरी नायिका भी। ये सबकॉन्शियसनेस डोमेन की निर्विकार कल्पनाएं हैं, ग्रीक म्यूज़ हैं जो ख्वाबों में मटेरियल फॉर्म लेके आती हैं, नहीं तो छाया को आप क्या देखोगे और क्या समझोगे। तो मैं एक दो कविता आपको सुनाऊं, उसके पहले या छाया को इंग्लिश में क्या ब्लूज, क्या छाया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लूज? नहीं, छायावाद जो है इट इज रोमांटिसिज्म।
एंड इट टचेज ऑल दोज इमोशंस जिनके लिए मैंने कहा ब्यूटी, प्लेजर, happiness, unhappiness because you separated सारा मतलब तो शेडो हुआ ना। shadow. So it is a game of shadows. तो आपकी पॉइंट्स में ब्लू ज़्यादा है। अब वो तो जो हो गया सो हो गया, मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं था। ऐसा है कि अगर ज़्यादातर लोगों की आप देखो, जो छायावादी कवि उनमें दुख ज़्यादा है, और ये जो आजकल की कविताएं हैं जिसको जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी के, मैं ड्रैग कर रहा हूँ अपनी बात को, सो अगर माफ़ करो तो लेट्स टॉक, हैव ए प्राइवेट टॉक अबाउट इट, नहीं तो आई विल जस्ट कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट। तो मैं दो एक कविताएं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये है आपकी बुक में पेज नंबर 67 पे चालू होती है। ये डिस्ट्रैक्शन हो गया। खैर थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका ये है कि जब सपनों में सपना आया तो मैं उठ करके उसे लिखने बैठ गया। जब लिखा तो लगा कि ये सपना और कल्पना मात्र ही नहीं थी, इसमें मैंने दो तीन लोगों का वन अपमैनशिप कर दिया, ब्रह्मा का, बच्चन का और दिनकर का। एनीवे सुनिए। मेरे प्रीतम लो आ गई मैं तुम मिलने को तुमसे, मेरे प्रीतम युग युग से जो ना सोया, करता याद मुझे जो तुझे सुलाने आई हूँ, मेरे प्रीतम दे थपकी तुझे सुला दूँ या फिर सामवेद के स्वर को छेड़ूं, साथ सभी संग लाई हूँ, जो भी राग कहे मैं गा दूँ, इसीलिए तो आई हूँ, मेरे प्रीतम। वैसे तो मैं निर्विकार हूँ, ध्यान दे, पर कामदेव ने मुझे बनाया, ब्रह्मा ने नहीं, कामदेव ने मुझे बनाया, चुन चुन के भाव तेरी कविताओं के, परली सुंदरता सृष्टि से सबकी, मेरे प्रीतम। माँ सरस्वती से ले गुण सारे, तेरी कविताओं का साकार रूप बनी हूँ मैं, मेरे प्रीतम। तितली सी चंचल में चांद सी शीतल भी, हर मेरी चितवन में मद जो भरा, हर मेरी चितवन में है मद जो भरा, कर दोएगा मदहोश तुझे। ध्यान दें, बिना अधरों के बिन चुंबन के, वन अपमैन और बच्चन, बिना अधर के बिन चुंबन के, फिर भी चुंबन के लिए अधर जो बने, छूते ही ला देंगे नींद तुझे, मेरे प्रीतम। नींद से जब तुम जागोगे तो बैठ प्यार के पंखों पर हम उड़ जाएंगे किसी और, मेरे प्रीतम। इस जगह इस कवर की डिज़ाइन हो गई थी मेरे दिमाग में, जो 2-3 साल बाद मैंने डिज़ाइन किया। जयपुर के ग्राफिक आर्टिस्ट ने इसको फाइनलाइज किया। तो अब इस स्टेज से चल के इस कल्पना में मेरी कॉन्शियसनेस की नायिका को मुझसे मिलने की इच्छा होने लगी। और ये कहना तो गलत होगा कि मुझे नहीं हुई होगी, बट दीज आर ऑल, तो ये वर्ड्स हैं, मेरे प्रीतम। आ जाओ मिलने को मुझसे, मैं चाहती तुमसे मिलने को कितना, आ जाओ पास मेरे प्रीतम। मैं नायिका नहीं तेरी प्रीतम वाली कविता की, पर निरी मानवी थी मैं ठहरी, थी मैं कीमती पहले भी, पर तूने बनाया बेशकीमती मुझको, लगा दिए थे 4 चांद मुझ पर, मेरे प्रीतम।
इसके भी पहले करते थे हम प्यार, समय बदलता रहा पर ना बदला हमारा प्यार। मेरा सीना था रोशन प्यार में अपने, इसीलिए सह जाती थी समय के झटकों को, क्योंकि था विश्वास मुझे कि तुम मेरे हो मेरे प्रीतम मेरे प्रीतम। तुमने भी कितने झटके खाए पर रहे तराशते तुम मुझको साजन, तुम ना होते तो मैं ना होती मेरे प्रीतम मेरे प्रीतम। मैं तेरी रचना भी ठहरी, तूने ही बहुमूल्य बनाया मुझको है, तेरे पैमाने से होठों में ही है मेरा हाल तमाम है प्रीतम मेरे प्रीतम मेरे प्रीतम। और उसी कल्पना के दौरान में एक और, मैं इसको पढ़ने वाला नहीं था लेकिन ज़रा जम रहा है तो पढ़ के सुनाता हूँ आपको। तड़प रही हूँ कब से मैं, तड़प रही हूँ कब से मैं, पेज नंबर 65। तड़प रही हूँ कब से मैं मिलने को तुझसे आतुर मेरे प्रीतम मेरे प्रीतम। आवाज़ जो दी तूने मुझको उस पार धरती के होते भी मैं थी पास तेरे हरदम मेरे प्रीतम मेरे प्रीतम। तू साकार मैं निर्विकार मुंतज़र हकीकत, तू साकार मैं निर्विकार, फिर भी साथ तेरे में थी छाया सी, फिर भी साथ तेरे में थी छाया सी मेरे प्रीतम मेरे प्रीतम। जब जब मुझे बुलाओगे पास मुझे तुम पाओगे मेरे प्रीतम मेरे प्रीतम। अब जब आई हूँ तो क्या दूँ तुमको मेरे प्रीतम मेरे प्रीतम। सपनों में मिलते मिलते प्यास बुझी ना तेरी मेरी, तुम मिल जाओ तो अमर हो जाएगी कविता तेरी, तुम मिल जाओ तो अमर हो जाएगी कविता तेरी मेरे प्रीतम मेरे प्रीतम। मैं रचना तेरी हूँ मैं रचना तेरी हूँ, कल्पना भी मैं तेरी, पर बंधी समय के जाल पाश में, तू भी बंधा धरती के काल जाल में, निकल कभी क्या पाएंगे मेरे प्रीतम मेरे प्रीतम।